me that these are the owners of these lovely homes and estates, nor are they trespassers. Don't worry about that. There's actually a 3-foot wide walking path that goes around the entirety of the lake. Stretches roughly 21 miles and can take anywhere from 6 to 8 hours to walk around the entirety of it. अबे यार देखो यार दोस्तों, जबरदस्त यार लग रहा सीन यार देखो यार। ये हमारे कैप्टन जबरदस्त। Now, up until now, I've had to ask you all. Oh, hello, microphone. Now, up until now, I've had to ask you all to use your imagination to picture what some of these homes and estates would look like. However, for the next few miles of shoreline, most of these homes remain relatively intact from when they were built in our Newport of the West period. Such as this lovely home, it is known as Blacktop. It's the white home with the red roof. ये ज़रार भाई भी आ गए। Hello, microphone. How are you? ज़रार भाई भी आ गए। Hello. There we go. So this Blacktop was built for a man named John T. Lester. He was a prominent member of the Chicago Board of Trade. The next 6 homes and estates are all part of the former Wrigley estate. The under William and P.K. Wrigley, the family amassed vast business, sports, and real estate holdings. By the time of P.K.'s passing in 1977, the family interests included the Wrigley Chewing Gum Company, the Chicago Cubs, the Wrigley Field, the Wrigley Building in downtown Chicago, real estate holdings in downtown Phoenix, Arizona, and most of Catalina Island off the coast of Southern California. अभी दोस्तों ये बोट जो है ना, जो जहाज है ये वापस आ रहा है। इस तरह मोड़ काट रहा है ये। 3-foot-wide walking path that I talked about earlier that just so happens to cut right in front of that window. There's now a law stating that if you do build any permanent structure here at the shoreline, it has to be at least 150 feet away unless you're renovating an already pre-existing building. As we cross from the north shore to the south shore, I'll share a few facts about the lake itself. As the earliest geologists can tell, this lake was formed roughly 20,000 years ago as the last glacier scraped across North America. It is 7.6 miles long from east to west, and is 2.1 miles wide at its widest point from Williams Bay to the Lake Geneva Yacht Club. It is the second deepest lake here in the state of Wisconsin, reaching a maximum depth of 142 feet right off the coast of Williams Bay. Now to put that into perspective, you can fully submerge a 14-story building with water still on top of it. Now the early settlers here were not the rich millionaires from Chicago, but were in fact the Potawatomi tribe who migrated here from northern Wisconsin in the 1600s. Another name for the site was Kishwaukee, which loosely translates to clear water or lake of the sparkling water. Now all that sparkling water, you're probably thinking, how on earth do you lower an entire lake? Well, there is a way. We have gates located in the outlet in the city of Lake Geneva. Roughly around November and December time, we open those gates and lower the lake a little less than a foot. Then once spring has sprung, we close those gates. Thank you, lady. Thank you very much. I listen to all your commentary. Thank you. Thank you. यार दोस्तों बड़ा मज़ा 1 घंटे का था यार। और इसमें उसने जो लेक के इर्द गिर्द जो थे ना जो घर थे और उसके बारे में बताया, वो बड़े महंगे थे यार। सॉरी यार, कैमरा इधर सेट करो। वो इतने महंगे थे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मरला या गज़ के हिसाब से नहीं मकान मिलता, यहाँ पे स्क्वायर फिट के हिसाब से मकान मिलता है। आप यकीन करें $10,000 स्क्वायर फिट से लेके 1 मुरब्बा फुट जो है उससे लेके $40,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे मकान मिलते हैं। अपनी जगह मिलती, सॉरी मकान नहीं, मकान तो बाद में बनाना पड़ेगा। इतना महंगा है यहाँ पे, अब अंदाज़ा कर लें आप खुद ही। पर अच्छा था, टूर अच्छा रहा। तो अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा नहा लें बीच के ऊपर, ठीक है, नहा के। और ये दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो
बड़ा अच्छा रहा यार, ज़बरदस्त रहा। और यहाँ पे इस वक्त गर्मी बड़ी है और हब्बस बहुत है, प्यास बहुत लग रही। पानी पीते हैं अभी यहाँ कहीं पे। यार दोस्तों आइसक्रीम खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आज काफ़ी लोग की खा लो। ये देखो दोस्त भी खा रहे हैं। बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त लेक जिनीवा में, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लेक जिनीवा में इस वक्त। तमाम दोस्त मौजूद हैं इसमें। शाहिद भाई हैं, हमारे अली भाई हैं, निसार भाई हैं, आमर भाई हैं और जरार भाई हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम। हाँ जी। और ये निसार भाई भी आइसक्रीम खाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या करना है इन्होंने। ये देखें, पर मुँह छुपा रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें आमर भाई। जी जी बिल्कुल। ये आमर भाई कहते हैं जी आइसक्रीम खाते हैं। मैं चलो खा लेते हैं यार। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, अगर अमेरिका में आप रहते हैं या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वनीला जो फ्लेवर है ये मस्जिद में बताया गया है कि ये हलाल नहीं है, मुसलमानों के लिए पैगाम है। जो चीज़ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है वो नॉन मुस्लिम के लिए उतनी नुकसानदेह है। वनीला फ्लेवर आपने नहीं लेना और जब अनटिल के आपको पता ना चल जाए कि ये सही है। और ये ज़रार भाई भी खा रहे हैं। ज़रार भाई ने चम्मच वाली ले ली। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। चलें दोस्तों, शुक्रिया। और यार यहाँ मक्खियाँ भी हैं यार, ये देखो। ये दोस्तों आपने सुना होगा कि हैदराबाद जो दक्कन है इंडिया, ठीक है, यानी कि साउथ में, उनके लोग बड़े ही ज़बरदस्त ज़हीन हाज़िर दिमाग होते हैं। और ये हमारे निसार भाई हैं, ये भी हैदराबाद दक्कन से। आज टेस्ट लेते हैं हैदराबाद के दक्कन के लोगों का कि ये कितने हाज़िर दिमाग और समझदार। तो इनसे एक सवाल पूछते हैं। आप बताइए कि निसार भाई के आप इंसानों में क्या महसूस करते हैं? क्या तो भी बोलूँ मैं आज तक मेरे को तो कोई इंसान मिला ही नहीं। जब मिलेगा तो मैं बता दूंगा। सच्ची बोला ना। मान गए भी, वाकई भी हाज़िर दिमागी है हैदराबाद के तक के लोग। शुक्रिया आप लोगों का। If you see me passing by, you might sit and wonder why. Wish that you were in the Jew. Nail those shoes to the kitchen floor, lace them up and bar the door. Thank those stars from the roof that's over you. ये दोस्तों बीच पे आ गए हम लोग और जा रहे हैं अंदर। और ये देखें हेलो भाई, हेलो बाबा अली। ये देखो दोस्तों, ऐसा जाओ, ऐसा काम ना करने हो। तो जी खाला मैंने टुबकी लगा दी है बहुत ही गहरे पानी में। और ये हैं अली गुजर साहब और ये मैं हूँ। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों।
में डुबकी मार। यार दोस्तों, यहाँ पे मछली की बड़ी बू आ रही है यार। मछली की यहाँ पे बू आ रही। वो आमर भाई कह रहे वहाँ आ जाओ। यहाँ पे मछली की बू बहुत आ रही है यार। चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ चलें। इधर नहीं है, इधर इस तरफ है यार भाई, जरा टुपकी लगाएं जरा। नहीं, डुबकी रहने दो यार। ये मैं कैमरा पकड़ाने के लिए आया निसार भाई को। निसार भाई, हम दूर जा रहे हैं तो बाद में आपने हमारा वीलॉग बनाना है। ये लें कैमरा। निसार भाई यहाँ बैठे हुए, कपड़ों का ध्यान रखना। ओके, बंद कर दें। बेबी घर चलो, बेबी घर चलो, घर तुम दिन है सोना। ए बेबी घर चलो, घर तुम दिन है सोना।
अब ये दोस्तों, ये जो है ना नहा लिया हमने, मगर यह है कि यार कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि पानी में गंदा पानी था, और दूसरा ये कि वहाँ पे स्मेल भी बड़ी आ रही थी, मछलियाँ, मरी हुई मछलियों की स्मेल आ रही थी। ये था मसला। अब ये दोस्तों मज़ा आया भरा, अभी भी लेक के साथ से ये देखो जा रहे हैं हम लोग ना। मगर ये दोस्तों जो झील का पानी था ना इतना साफ़ नहीं था, और उसमें स्मेल भी आ रही थी यार, ये मज़ा नहीं आया। मछलियों को होती ना मरी मछलियों की स्मेल आती, पानी इतना साफ़ नहीं था, मज़ा नहीं आया। बहरहाल उन्होंने यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है कि वहाँ लेक में आप स्विमिंग करने के बाद साफ़ पानी के उन्होंने यहाँ पे शावर लगाए, वहाँ पे शावर ले सकते हैं आप ऊपर, और फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता खास, मगर ये है कि चलो तसल्ली हो जाती है दिल की। अब हम जा रहे हैं कि हमारे दोस्त जो है ना मिर्ज़ा खालिद बेग, वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे एक फार्म है, यानी कि गाय जो होती है ना वहाँ, यहाँ भैंसें तो होती नहीं, तो उसमें हमें ताज़ा दूध, अंडे वगैरह चीज़ें वगैरह, तो हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाएँ जल्दी जल्दी, कि कहीं वो बंद ना हो जाए ना। कभी 7:30 हो गए शाम के ना, तो अभी हम विस्कॉन्सिन में ही हैं, तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे मिल जाए तो मैं भी अपना खाली बर्तन दूध का लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये पीछे देखो बैठे हुए हैं, और ये निसार में चला रहे जूता उतार के, नहीं जूता पहना हुआ है। चलो मिलते हैं वहाँ पे जाके, बस थक गए, वैसे मज़ा आया वैसे दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक होनी चाहिए ऐसे। नाइस है।